آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے جہنم کا بیان کہ تم ظلم سے بچو، کیونکہ یہ ظلم تاریکی میں ڈھکیل دینے والی ہے کہ یقیناً یہ وہ پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا اور آج وہ اس کی تہ تک پہنچی ہے۔ نار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو صفت لائی ہے وہ کبرا لائی ہے کہ جہنم کی آگ بہت بڑی آگ ہوگی، زنجیروں میں باندھ کر کے صندوق میں ڈال دے گا، وہ بستر اور اوڑھنے کے لیے جو دیا جائے گا وہ بھی آگ کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کی چمڑیوں کو، اس کے کھالے کو اللہ رب العالمین بدل دے گا۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سجاوار ہے جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیے، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انگنت بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص آخری نبی آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے جہنم کا بیان۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ فرمایا وہاں اللہ رب العالمین نے اعدت للمتقین کہا کہ یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ کیا وہاں اعدت للکافرین یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان جن چیزوں پر لانا ہے ان میں سے ایک چیز ایمان بالیوم الآخر ہے، اور ایمان بالیوم الآخر کے جو تقاضے ہیں ان میں سے جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جنت نام کا ایک ٹھکانہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نئے بندے موحد اور فرمانبردار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے کافر، مشرک اور نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جہنم سے پناہ اور جنت کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم سے ہمیں پرے رکھ، دور رکھ، کیونکہ ان عذابها کان غراما، اس کی جو عذاب ہے چمٹ جانے والی عذاب ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی ایک سورت سکھلا رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے جہنم کا پناہ، عذاب قبر کا پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنوں سے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اکثر من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اس بھلائی سے مراد کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق عطا فرما، کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں علم نافع عطا فرما، کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں صحت و تندرستی عطا فرما، گویا کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا میں نعمتیں عطا فرما، اور وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت میں حسنہ سے مراد کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ فرما، وقینا عذاب النار، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے 3 مرتبہ تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم کے عذاب سے بچا۔ محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنی چاہیے اور جہنم سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر مسکین لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر کمزور لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم نے کہا کہ میرے اندر
जालिम और मुतकब्बिर लोग दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला किया कि अल्लाह ने कहा कि जहन्नम से कहा कि तू मेरा अजाब है, मैं तेरे जरिए से जिसे चाहूंगा इंतकाम लूंगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से कहा कि तू मेरी रहमत है, मैं जिसे चाहूंगा रहम करूंगा। मुहतरम सामीन, जहन्नम ने कहा कि मेरे अंदर जालिम लोग दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा फ़इन्नज़्ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, कि तुम जुल्म से बचो क्योंकि ये जुल्म तारीकी में ढकेल देने वाली है, ये जुल्म अंधेरों में ढकेल देने वाली है, गोया कि जहन्नम में ढकेल देने वाली है। एक दूसरे के ऊपर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हो, एक दूसरे को सताते हो, परेशानियों से दो चार करते हो, इनसे बाज आ जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन जालिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधेरों में तारीकों में ढकेल देगी, तारीकी में ढकेल देगी। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से कहा कि मेरे अंदर मुतकब्बिर लोग दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन फी किब्रिन। आजकल जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत अता किया है, वो अपने मालो दौलत पर तकब्बुर कर रहे हैं। जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूबसूरती अता की है, वो अपने खूबसूरती पर तकब्बुर कर रहे हैं। जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व ज़ायदात अता की है, वो अपने ज़मीन व ज़ायदात पर तकब्बुर कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिसके अंदर तकब्बुर हो, जिसके अंदर किब्र हो, बड़ाई हो, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। दर्रा बराबर भी उसके दिलों के अंदर तकब्बुर हो तो वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता है। मुहतरम सामीन, आप देखें कि फिरौन ने तकब्बुर किया और कहा कि अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे समंदर में गर्क किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून को बहुत सारे माल दौलत अता किया, खजाने की चाबी अता की, लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जमीन में धंसा दिया। फिर तकब्बुर किस बात की? इसलिए अगर जर्रा बराबर भी दिलों के अंदर तकब्बुर हो तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए हमें जरूरत इस बात की है कि अपने दिलों को साफ रखें। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से जहन्नम की गहराई कितनी है। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, बयान करते हैं कि हादा हजरुन, के सहाबा किराम की एक जमात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक गिरने की आवाज सुनी, धमाके की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मालूम है किस चीज की आवाज है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंद 70 खरीफा फहुवा यहवी फिन्नार अलआन हत्ता इंतहा इला क़अरिहा। कि यकीनन ये वो पत्थर है जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया और आज वो उसकी तह तक पहुंची है। मालूम ये हुआ कि जहन्नम की गहराई कितनी है। अगर पत्थर फेंका जाए तो उसकी गहराई तक, उसके तह तक पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे, तब जाकर के वहां पहुंचेंगे। ये उतनी उसकी गहराई है। अल्लाहु अकबर। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से आतिश जहन्नम का रंग क्या होगा? हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं, उक़िदा अलन्नार अल्फ सनतिन हत्ता मरवत सुम्मा उक़िदा अलैहा अल्फ सनतिन हत्ता बियद्दत सुम्मा उक़िदा अलैहा अल्फ सनतिन हत्ता स्वद्दत फहिय सौदा मुज़लिमतुन। कहा कि जब जहन्नम की आग को 1000 साल धोखा गया तो वो लाल हुआ, और मजीद 1 साल और धोखा गया तो वो सफेद हुआ, और मजीद और 1 साल धोखा गया तो वो सियाह हो गई, काली हो गई, और अभी भी वो काली है। जहन्नम का जो रंग है वो काली है। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से जहन्नम के जो बात सूरतें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि मन तरद्दा मिन जबलिन फक़तल नफ्सहु फहुवा फी नार जहन्नम यतरद्दा फीहा खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा। कि जिसने इस दुनिया के अंदर खुदकुशी की, पहाड़ों में चढ़ करके वहां से अपने आप को हलाक हो गया, खुदकुशी कर ली, जाने दे दी, कल जहन्नम में, जहन्नम की बालाई हिस्से पर वो उसी तरीके से कूदेंगे और उसी तरीके से वो अपने आप को हलाक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां मौत नहीं आएगी और यही उनके लिए अजाब होगा और हमेशा हमेश के लिए वो इसी तरीके से करते रहेंगे। और इसी तरीके से वमन तहस्सा सम्मन फक़तल नफ्सहु फसम्मुहु फी यदिही यतहस्साहु फी नार जहन्नम खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से जिन्होंने इस दुनिया के अंदर जहर पी लिया हो, जहर चाट लिया हो और फिर खुदकुशी कर ली, उस जहर के जरिए से अपने आप को हलाक कर लिया,
तो कल जहन्नम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथ में वो जहर देगा और हमेशा हमेश के लिए चाटता रहेगा और यही उनके लिए अजाब होगी और हमेशा हमेश के लिए वो इसी तरीके से करता रहेगा। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से वमन क़तल नफ्सहु बिहदीदतिन फहदिदतहु फी यदिही यजाउ बिही बिहा फी बत्निही फी नार जहन्नम, कि जिसने अपने पेट में किसी हथियार के जरिए से वार किया इस दुनिया के अंदर, चाकू के जरिए से या लोहे के जरिए से, तो कल जहन्नम में भी वो उसी तरीके से हथियार दिया जाएगा और जहन्नम में भी वो इसी तरीके से वार करते रहेंगे। यही उनके लिए अजाब होगा और हमेशा हमेश के लिए वो करेंगे। मोहतरम सामीन, कितना खतरनाक जुर्म है और कितना खतरनाक अजाब है। हमें चाहिए कि हम इस जैसे अजाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन से बचें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युता बिन्नार यौमल क़ियामह लहू सबऊन अल्फ ज़िमाम मअ कुल्लि ज़िमाम सबऊन अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, कि कल क़यामत के दिन जब जहन्नम को खींच करके लाया जाएगा, जहन्नम में जो जंजीरें होगी वो 70,000 जंजीरें होगी और एक जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़ेंगे और खींच करके लाएंगे। गोया के एक जंजीर को पकड़ने वालों की तादाद कितनी होगी? 70,000, और 70,000 जंजीर होगी। गोया के 4 अरब से ज्यादा फरिश्तों की तादाद होगी जहन्नम को खींच करके लाने में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहन्नम की चौड़ाई कितनी होगी, जहन्नम की लंबाई कितनी होगी, जहन्नम की ऊंचाई कितनी होगी और जहन्नम की गहराई कितनी होगी। मुहतरम सामीन, लेकिन उसके बावजूद भी जहन्नम नहीं भरेगी। गोया के 1000 में 999 को जहन्नम में डाला जाएगा और एक को जन्नत में, उसके बावजूद जहन्नम नहीं भरेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, हलिम तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से पूछेगा, क्या मजीद और भी है, क्या जहन्नम भर गई? व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जहन्नम कहेगी मजीद और भी है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पैर रखेगा, जहन्नम में अपना पैर रखेगा। जहन्नम कहेगी क़त क़त व इज़्ज़तिक, बस बस तेरी इज्जत की कसम, जहन्नम भर गई। जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पैर रखेगा, जहन्नम सिमट जाएगी और जहन्नम कहेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम भर गया। इसी तरीके से इस हदीस से मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैर भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ भी है, लेकिन किस तरह है वो कैफियत मजहूल है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को मालूम है। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से जन्नत को भी भरेगा, लेकिन देखेगा कि जन्नत नहीं भरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां एक नया मखलूक पैदा करेगा और जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन भर देगा। सवाल पैदा होता है कि जहन्नम में भी एक नए मखलूक को पैदा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम भर सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन बिला वजह किसी मखलूक को पैदा करके अजाब देना नहीं चाहता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अदल है। और जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नया मखलूक को पैदा करके भर दिया, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फضल है, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आदिल भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फजल करने वाला है। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। मुहतरम सामीन, जहन्नम सबसे बुरी जगह है। हमने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बुरी जगहें देखी है, लेकिन जहन्नम सबसे बुरी जगह है, जिस जगह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फबिअसल मसीर, कि ये बहुत बुरा ठिकाना है, ये बहुत बुरी जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि ये बहुत बुरी जगह है, तो इससे बढ़कर बुरी जगह और क्या हो सकती है? आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से जहन्नम की आग सबसे बड़ी आग है। इस दुनिया की आग को हम नार कह सकते हैं, लेकिन नारल कुबरा नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की आग को यसलन नारल कुबरा, नार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिफत लाई है वो कुबरा लाई है कि जहन्नम की आग बहुत बड़ी आग होगी। आप इस आयत करीमा से भी समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र, यकीनन जहन्नम की आग से जो निकलेगी चिंगारी, वो चिंगारी महल के मानिंद होगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चिंगारी महल के मानिंद होगी, तो फिर उस जहन्नम की आग और उसके शोरे की हालत क्या होगी? अल्लाहु अकबर। मुहतरम सामीन, इसी तरीके से जहन्नमियों का जो खाना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल अफ़ीम कलमुहली यग़ली फ़िल बुतून कग़लिल हमीम, कि ज़क़ूम का दरख्त होगा, वो दरख्त बिल्कुल कड़वाहट होगी, इतनी कड़वाहट होगी, कहा जाता है कि इस दुनिया के अंदर एक बूंद गिर जाए, दुनिया की सारी लज्जतें, सारी मजा बदमजा हो जाएगी और सारी लज्जतें खत्म हो जाएगी, और वो जहन्नमियों का खाना होगा। तामुल असीम, ये गुनहगारों का खाना होगा और पेट में उसी तरीके से खोलेगा
जिस तरीके से गर्म पानी खोलता है, इसी तरीके से मोहतरम सामईन जहन्नमियों को जो खाना होगा वो ज़रीई होगा, कांटेदार खाना होगा। जब वो अटक जाएगा बीच में, गले में जब अटक जाएगा, उसको निगलने के लिए वो पानी मांगेंगे, खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। इस तरीके से खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, चेहरे के सामने ले जाते चेहरा भून जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। और जब पिएगा, जब वो मजबूरन में पीना पड़ेगा, जब वो जहन्नमी जब वो उस पानी को पिएंगे, वसुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्ता मआहुम, उसकी अतड़ी कट करके बाहर निकल आएगी। अल्लाहु अकबर, ये पानी की कैफियत होगी मोहतरम सामईन। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, इदा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा, कि जहन्नम वो बिल्कुल तंग जगह होगी, जहाँ उलटने और पलटने की जगह नहीं होगी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि संदूक में अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देगा, जंजीरों में बांध करके संदूक में डाल देगा। गोया के वो हरारत इतनी शदीद और इतनी जबरदस्त उनको वो तकलीफ होगी कि वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को मारते हैं तो वो हाथों में जब मारते हैं तो वो हरकत करते हैं ताकि एहसास खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में मुकम्मल तौर पर जंजीरों से बांध दिया जाएगा और बांधने के बाद संदूक में डाल देंगे, वो संदूक भी आग की संदूक होगी मोहतरम सामईन। इसी तरीके से जहन्नम में पहनने के लिए लिबास भी दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, वो आग के कपड़े भी दिए जाएंगे, वो दर्जी कटिंग करेंगे। कुत्तिअत तक़ती यानी दर्जी मेज पर जिस तरीके से कपड़े को कटिंग करते हैं उसको तक़ती कहते हैं, और वो कटिंग करके जहन्नमियों को पहनाएंगे। किस तरीके से वो उस आग के कपड़े को काटेंगे और किस तरीके से उसको सिलेंगे, वो कैफियत मजहूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को मालूम है मोहतरम सामईन। इसी तरीके से जहन्नम में बिस्तर भी दिया जाएगा, ओढ़ने के लिए ओढ़ना भी दी जाएगी, लेकिन किस चीज की? लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश, वो बिस्तर और ओढ़ने के लिए जो दिया जाएगा वो भी आग की होगी। इसी तरीके से लहुम मिन फौक़िहिम दुलल मिनन नार व मिन तहतिहिम दुलल, कि जहन्नम की जो छत होगी वो भी आग की होगी, जो फर्श होगा वो भी आग का होगा, मुकम्मल तौर पर आग ही आग होगी। और जब जहन्नमियों में जब जहन्नमी लोग जलेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी चमड़ियों को, उसके खाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन बदल देगा। इसलिए असल जो एहसास होता है चमड़े में एहसास होता है, क्योंकि जब चमड़ा खत्म हो जाएंगे तो एहसास जर्रा बराबर नहीं होगा। इसलिए उस एहसास को दिलाने के लिए, ताकि उस अजाब की हरारत आपको महसूस हो और उसकी शिद्दत आपको महसूस हो, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार आपकी चमड़ियों को बदलते रहेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए जहन्नम से निजात के लिए, और जन्नत का सवाल करना चाहिए, क्योंकि वयअतीहिल मौत मिन कुल्लि मकान व मा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेर लेगी लेकिन मौत नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन हमें जन्नत में दाखिला और जहन्नम से निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह आलमीन तो जब तक हमें ज़िंदा रख, दीन इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब हमें खात्मा बिल खैर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।